Hi, good morning, everyone. The topic of our today's Facebook Live is infertility. Infertility is a very vast and I would say a very broad topic to discuss, but we'll try to touch few things in this half an hour session. First of all, what is infertility? Infertility is when a couple is not able to conceive with regular unprotected intercourse in a period of 1 year. Once they have been regularly trying and they're not able to conceive, so they need to get themselves evaluated. अब it's of two types, primary and secondary. So what is primary? Primary is जिसमें कभी भी कोई conception नहीं हुआ है, उनको बोलते हैं हम primary infertility. Secondary infertility is कि they have conceived once. It's not necessarily कि they had a healthy baby, but चाहे एक abortion ही क्यों ना हुआ हो, it is secondary infertility. So we need to evaluate both the causes कि what are the causes जिसकी वजह से infertility prevalent है. Usually it is both the partners जिनके needs evaluation. It's not only a female part which needs a detailed evaluation. Male part is equally important. In fact, male part is the part which is quite ignorant in our public और हमें लगता है कि उसमें इतना ज़्यादा problem नहीं है and we are not very much I would say aware about this thing. So जब भी आप कभी when you're not able to conceive for 1 year, I've been trying regularly, you go and meet your doctor. There are few things the doctor is going to ask you and will examine you also. पहले तो आपका व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर सेक्सुअल इंटरकोर्स, कितना आपका वीक में कितनी बार है, वेदर योर साइकिल्स आर रेगुलर, आपके साइकिल्स में कोई पेनफुल साइकिल्स तो नहीं है, और दे हैव बीन इनफ्रीक्वेंट और इरेगुलर साइकिल्स. Infrequent, irregular cycles or scanty cycles, these are basically leading to a feature of ovarian dysfunction के ovaries शायद जो हैं जो वो अच्छी तरह से एग नहीं बना रही है, तो एग नहीं रिलीज होगा तो क्वालिटी एग की नहीं आएगी, तो हेल्दी एग के बिना प्रेगनेंसी डिफिकल्ट हो जाएगी. वाई? बिकॉज प्रेगनेंसी में एक फर्टिलाइजेशन के लिए आपको एक हेल्दी एग चाहिए, हेल्दी स्पर्म चाहिए, प्लस एक ट्यूब चाहिए जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी जो हेल्दी होनी चाहिए, प्लस यूट्रस की लाइनिंग एंडोमेट्रियम वो अच्छा वेल फॉर्म्ड होना चाहिए, सो डेट जब कंसेप्शन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए इन ट्यूब, वो इम्प्लांट जो है यूट्रस के अंदर हो जाए. So these are the few 4 things which need to be monitored. So it is not only कि I would say कि फीमेल के फैक्टर ज़्यादा हैं तो मेल फैक्टर कम है. इसके अलावा भी there is a term which is known as unexplained infertility, in which कोई कारण नहीं होता है, everything is normal but the couple is not able to conceive. Unexplained infertility के बहुत रीजन हैं. It can be कि mild endometriosis which was not detected earlier, वो भी हो सकता है उसके अंदर आ रहा हो, which पेशेंट की कभी इतनी डिटेल्ड हिस्ट्री हुई नहीं कि आप उसको वेलुएट वैसे कर पाए. अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जो है सबसे डिफिकल्ट टू ट्रीट है, बिकॉज क्योंकि कोई कारण नहीं है. यूजुअली आजकल की जो जनरेशन है एंड द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी आर लीडिंग विच इज क्वाइट कॉम्पिटिटिव एंड क्वाइट एग्रेसिव, तो जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज्यादा है. सो द स्ट्रेस लेवल लीड्स टू नेगेटिव हार्मोन्स एंड दैट कैन कॉज अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी. I've seen many cases in my practice. I've seen patients who have conceived by IVF in their first pregnancy, but second was spontaneous conception क्योंकि they were not planning for it. They were at so much ease कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि अरे ये कैसे हो सकता है. हम पिछली बार तो 7-8 साल बाद प्रेगनेंसी है, वो भी IVF से हुई थी, आप कह रहे हो अभी प्रेगनेंसी हो गई है. So this is the reason. This is the prime reason. The stress factor these days is causing infertility. So first of all, it's very important कि what few things that you need to keep in mind. एक तो you need to have some either do meditation or you need to stress free yourself by if you want to do some chanting or some kind of breathing exercises which will definitely help. That's very important. Plus the other factors are healthy diet, good sleeping patterns. जो सब कुछ आजकल की जो कॉम्पिटिटिव यही जो मैं आपको बता रही हूँ, स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में आपका डाइट इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज, यू नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली, आप जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, देर आर ड्रिंक्स विच आर
associated with these days with this generation. I'm not saying that you cannot have drinks, you can have, but then it's important कि वो जो drinks हैं आपकी उसकी मॉडरेशन होनी चाहिए एंड इट शुड बी टाइट्रेटेड. इट शुड नॉट बी लाइक कि आपका वेट गेन हो रहा है और योर साइकिल्स आर गेटिंग अफेक्टेड बाय एवरीथिंग द जंक फूड यू आर ईटिंग. You need to, once you decide that you want to get pregnant or you want to have a pregnancy, there are few guidelines you will have to follow. So healthy lifestyle is one of that needs to be monitored. आपके साइकिल्स कैसे हैं ये आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताएंगे जब आपको मिलेंगे. शी विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द ओवुलेशन टाइम पीरियड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पता होगा कि कब ओवुलेशन है तभी तो आप ट्राई करेंगे. So there are ovulation kits also available जिनके अंदर रेगुलर साइकिल्स नहीं होते हैं. They can use ovulation kits, LH kits के नाम पे आते हैं, commercially available हैं, but then only after your doctor recommends you because not every person is suitable for that kit. Similarly ovulation के predict करने के और भी तरीके हैं, but एक roughly एक idea लेने के लिए usually the last 14 days of the cycle ऑफ अ पेशेंट, अगर उसके रेगुलर साइकिल्स हैं, आर फिक्स्ड. उससे पहले लास्ट 14 डेज से पहले में ओवुलेशन हो रहा है. सो अगर किसी का 28 डेज का साइकिल है तो 14th डे पे ओवुलेशन है. सो 30th है तो 16th डे पे ओवुलेशन है. सो बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट किसी का 28 to 35 डेज का है. सो वी यूजुअली टेल आवर पेशेंट्स कि आप 8th 9th डे से एटलीस्ट 18 डेज तक ऑल्टरनेट डे रिलेशंस करें जिसमें चांसेस इंक्रीज होंगे. So that is one thing we need to study and we should know about ovulation. Second is other factors which are responsible are we need to have a detailed history of the patient. हमें उससे ये भी पूछना है कि कभी कोई ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री तो नहीं है. That is one history जो लोग बहुत छुपाते हैं. बचपन में कभी हुई होगी और ना भी हुई हो, अगर आपकी फैमिली में किसी को आसपास रही है उस टाइम पे, यू माइट बी एक्सपोज एंड आपके अंदर इतने सिम्टम्स नहीं आए. And we already know that India में TB is quite prevalent and every 4th 5th Indian exposed है TB के बेसिलाई को. So it's not necessarily कि आपको proper lung TB होगी या कोई TB होगी तभी वो TB आपके अंदर है. कई बारी वो TB वहाँ पे नहीं शो करती, but later on secondary TB की तरह, जिसको हम बोलते हैं कि यूट्रस के आसपास की TB pelvic tuberculosis की तरह प्रेजेंट कर सकती है. सो उन केसेस में वो ट्यूब्स पे इफेक्ट कर सकती है, लाइनिंग पे इफेक्ट कर सकती है. यूजुअली ट्यूब्स जो है वो काफ़ी हार्ड हो जाती हैं एंड ट्यूब्स की जो पेटेंसी है वो नहीं रहती है. सो दैट इज ऑल्सो वन हिस्ट्री पार्ट दैट वी नीड टू आस्क द पेशेंट. कई बार आप उनके एग्जामिनेशन में उनसे पूछते हैं कि कई बार कईयों को मिल्क डिस्चार्ज हो रहा होता है ब्रेस्ट से, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसकी वजह से है एंड दैट ऑल्सो कॉजेज इनफर्टिलिटी. सो बहुत रीजंस हैं जो आपको एवेलुएट कराने पड़ेंगे अगर आप जाके अपने डॉक्टर के पास जाएंगे. वो आपकी डिटेल हिस्ट्री के साथ साथ आपका चेकअप करेंगे एंड शी माइट राइट यू फ्यू टेस्ट ऑल्सो टू एवेलुएट यू फर्दर. सो ये एक फैक्टर है जो हमें देखना है. एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फर्टिलिटी. मेल्स के लिए नहीं इतना, बट फिर भी फीमेल्स में जैसे जैसे एज आगे जा रही है द एग्स जो हैं वो एक तो नंबर इज गोइंग डाउन. सो इट्स नॉट ओनली द क्वांटिटी विच इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज, इट इज द क्वालिटी ऑल्सो विच इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड. सो वी नीड टू गेट दैट पर्सन. अगर सपोज आपके पास 30+ फीमेल आ रही है तो आप उसको वैल्यूएशन में उसका ओवेरियन रिजर्व भी कराएंगे, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड भी होता है, ब्लड टेस्ट भी होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कैसा है उसका. द पेशेंट माइट नीड सीरियल अल्ट्रासाउंड इवैल्यूएशन ड्यूरिंग ओवुलेशन ऑल्सो. सिमिलरली उसके अल्ट्रासाउंड में जब हम वैल्यूएशन करा रहे हैं वो हमें सिर्फ एग्स का नहीं बता रहा, वो हमें उसकी लाइनिंग भी बता रहा है यूट्रस की जो बन रही है कि वो कैसी है. ये लाइनिंग वो विद हॉर्मोन्स जैसे जैसे साइकिल जा रहा है वो अच्छी कंप्लायबल लाइनिंग हो रही है एंडोमेट्रियम की इम्प्लांटेशन के लिए, और इट इज़ अ हॉस्टाइल एंडोमेट्रियम. सो व्हाट इज बेसिकली हॉस्टाइल एंडोमेट्रियम? इट्स यूजुअली कई बार कहीं की बहुत थिन एंडोमेट्रियम होती है, जैसे कि हम ड्यूरिंग ओवुलेशन मोर देन 7-8 mm की लाइनिंग जो होती है वो अच्छी लाइनिंग है. सो उससे कम अगर आ रही है सो डेफिनेटली या तो आपके हॉर्मोन्स प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं जो उसको स्टिमुलेट नहीं कर रहे हैं, या फिर देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट एंडोमेट्रियम लाइनिंग. विच एंडोमेट्रियम लाइनिंग की प्रॉब्लम? जो इनहेरेंटली सिर्फ यूट्रस की लाइनिंग की प्रॉब्लम हो, वो हार्मोनली ना हो,
उसमें ट्यूबरक्लोसिस भी एक रीजन है जो हो सकता है। कई बार कोई प्रायर, जैसे आपने हिस्ट्री ली, पेशेंट ने आपको हिस्ट्री में अगर ये नहीं बताया कि मेरी कभी कोई डीएनसी हुई है, हो सकता है वो ओवर क्लीनिंग की वजह से वहां की जो लेयर है वो खराब हो गई हो। सो देर आर फ्यू थिंग्स विच द पेशेंट हैज टू ट्रस्ट अ डॉक्टर एंड हैज टू टेल एवरीथिंग सो दैट वो प्रॉपरली इवेल्युएट हो पाए कि कौन सी चीजें हैं जो रहती हैं। लोकल इन्फेक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं। कई बार कईयों को यूट्रस के आसपास इन्फेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं पीआईडी। पीआईडी बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी होती है, जिसमें से वन ऑफ द कॉमनेस्ट इज क्लमाइडिया। क्लमाइडिया यूजुअली इन्फेक्शन जो है हमें पता ही नहीं चलता कि इन्फेक्शन हुई है, क्योंकि उसके कोई खास सिम्टम्स नहीं होते। बट क्लमाइडिया व्हेन टेस्टेड एंड इफ पॉजिटिव, it has a very bad effect on female fertility because chlamydia tubes को block कर सकता है। क्लेमाइडिया की वजह से इन्फेक्शन से ट्यूबल अगर ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो पेशेंट को कंसीव होने में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। बिकॉज इवन इफ द पेशेंट की ट्यूब अगर एक भी ब्लॉक्ड है तो उसके चांसेस 50% हो गए, और अगर दोनों ब्लॉक्ड हैं देन द पेशेंट इज लेफ्ट ओनली विद एन ऑप्शन ऑफ एन आईवीएफ। सो शी नीड्स टू बी evaluated फॉर दैट ऑल्सो, कि कोई लोकल इन्फेक्शन तो नहीं है जो परसिस्ट कर रहे हैं उसके अंदर, ये देखना जरूरी है। अब हम नेक्स्ट जो चीज पे आते हैं विच आई एम ट्राइंग, व्हाट डू यू मीन बाय टीसा एंड व्हाट इज टीसा प्रोसेस? सो टीसा इज बेसिकली टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन ऑफ स्पर्म एक्सट्रैक्शन। सो बेसिकली टीसा का जो एस्पिरेशन, सो उसमें होता क्या है कि ये उन केसेस में किया जाता है, जैसे अब आई वाज जस्ट अबाउट टू कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मेल इनफर्टिलिटी। सो मेल इनफर्टिलिटी में 3 थिंग्स विच वी नीड टू सी। एक आप काउंट देख रहे हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, उसकी मोटिलिटी देख रहे हैं। सो इफ देर इज नो काउंट, आपको जो अपने सीमन एनालिसिस कराया जो कि यूजुअली मोर देन 15 मिलियन पर ml इज कंसिडर्ड अ गुड काउंट, कि उसके बाद 15 to 60 मिलियन जो है वो अच्छा है। लेस देन 15 जो है उस पर वी नीड इवेल्युएशन। सो यू अगर आपने देखा उसका इवेल्युएशन करा के हस्बैंड का आफ्टर 3 to 7 डेज ऑफ एब्सटिनेंस में, कि अगर उसके अंदर अंदर में उसके जो सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट ली है उसके अंदर में स्पर्म काउंट में कोई भी स्पर्म नहीं दिख रहा, देन डेफिनेटली इट्स अ केस ऑफ, हम उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया हैज मल्टीपल रीजंस। इट्स नॉट ओनली के स्पर्म बन नहीं रहे हैं, कई बार स्पर्म बन रहे होते हैं टेस्टिस में। टेस्टिस इज द रीजन जहाँ पे मेल्स में जहाँ स्पर्म्स बनते हैं, उसके बाद वो डक्ट से ट्रेवल होके वो इवेंचुअली इजैकुलेशन के लिए पहुंचते हैं। अब या तो रीजन ये हो सकता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कि वहां से स्पर्म बने टेस्टिस में पर कहीं ब्लॉकेज था जिसकी वजह से स्पर्म जो है फाइनल उसमें नहीं आए सीमेन एनालिसिस में। सो दैट ब्लॉकेज कैन लीड टू वेरिकोसील कैन लीड टू। सो इन केसेस में जहां पे आपको लगता है कि एजोस्पर्मिया है, so usually that patients are sent to obviously to an IVF specialist। वहाँ पे आप जब हम IVF के लिए उनको evaluate करते हैं तो जो हस्बैंड है उसके टेस्टिस से एक बायोप्सी लेके, एंड इट शुड ऑलवेज बी डन इन अ प्लेस, इट शुड नॉट बी ओनली कि आपने बायोप्सी लिया और आपने देख लिया हाँ जी स्पर्म है। व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट दैट स्पर्म्स? बिकॉज वो अगर 4-5 ही हैं और अच्छे हैं, सो इट शुड बी इन अ सेंटर विच हैज टीसा इन इट, जो जहां से एस्पिरेट करके उसको डायरेक्टली आईवीएफ के जो उसमें इम्प्लांट कर सके उसके अंदर, जिसके अंदर से जब ओवम और स्पर्म का वो करा सके। जहां पे टीसा को कलेक्ट करके प्रिजर्व करने की फैसिलिटी नहीं है, आई वुड से वहां पे टेस्टिकुलर बायोप्सी करा के कोई वी आर नॉट गोइंग टू गेन मच। सो दिस इज टीसा एंड इट्स अ लोकल प्रोसीजर, इट इज नॉट एनीथिंग जिसके लिए बहुत देर तक कोई पेशेंट को बहुत पेन रहेगी या उसको कोई बहुत बेड रेस्ट की जरूरत है। सो व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग दैट अगेन एंड अगेन, बिकॉज फॉर मेल्स इट बिकम्स अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा मोर, एंड स्पेशली अगर कुछ लगे कि उसके बाद में कुछ हमें मतलब वी नीड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड इन एनीथिंग that actually causes more fear in them. So it's important that both husband and wife should be equally supportive to each other at this time. Why AMH low level takes place? This is what I was trying to tell you, कि initially जब eggs बनते हैं
तो वो आपके शुरू में जब तक फीमेल जैसे एक फीमेल बेबी हुआ तो उसके मिलियंस में एग्स जब आए, बट उसका एक प्रोसेस ऑफ एट्रीजिया चल रहा है, वो अपने आप डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं. सो बाय द टाइम पेशेंट उस स्टेज में आया जब वो फर्टाइल हो रहा है, तब जाके पता चलता है कि सिर्फ 400 एग्स है. हर साइकिल में आपका एक एग जा रहा है, किसी साइकिल में आपके 2 एग भी जा रहे हैं. सो जैसे जैसे एएमएच लेवल जो है वो क्या प्रिडिक्ट करता है, इसका इट्स अ हार्मोन टू प्रिडिक्ट एंटी मुलेरियन हार्मोन. इट इज अ हार्मोन टू प्रिडिक्ट ओवुलेशन रिजर्व. अगर एएमएच लेवल लो है, इसका इंडिकेटर ये है कि एग जो है रिजर्व इन अ फीमेल इज लो. वो एग बन ही कम रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है. तो इन केसेस में जहां पे एएमएच लेवल लो हो, पहले तो डिपेंड करेगा कितना लो. देयर इज अ रेंज ऑल्सो विच इज देयर एंड इट वेरीज विद द लैब्स. यूजुअली जो लैब्स हैं कईयों में कट ऑफ जो है 3.5 से नीचे है, कईयों में 1 तक की है, 1 to 3.5 is normal. So it's a range we have to collaborate with the lab which is getting the test done. तो AMH लेवल को कब कराना है टेस्ट? यूजुअली AMH लेवल शुड बी डन ऑन सेकेंड और थर्ड डे ऑफ द साइकिल, और उस साइकिल में फास्टिंग में. और उसमें आपको ये देखना जरूरी है कि अगर उसका ऐसे वाला है कि माइल्ड है, बहुत ज्यादा लो नहीं है, देर आर फ्यू ड्रग्स विच वी कैन गिव देम, जिसमें हम उसका ओवुलेशन जो है improve करा सकते हैं, क्वालिटी भी एंड क्वांटिटी भी. But then also I would suggest that your gynecologist needs to be aggressive with your treatment protocols, because it's a ticking bomb, वो धीरे धीरे नीचे जाएगा. ठीक है. तो जो भी आपके प्रोसेसेस चल रहे हैं, if you have been left for natural cycles, then she should try to give you an IUI का cycle if it's possible. And if you don't conceive with an IUI cycles, there should be set patterns which should be decided beforehand only, कि अभी इतने साइकिल्स हम नेचुरल ट्राई करेंगे, इतने साइकिल आईयूआई करेंगे, नहीं हो रहा तो हम आईवीएफ करेंगे. इतना नहीं होना चाहिए कि आप साल 2 साल तक बस आईयूआई कर रहे हैं या आप छोड़ रहे हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी. उस चक्कर में क्या है कि आप अपना एग काउंट बिल्कुल कम कर देंगे. बाय द टाइम यू रीच टू एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट, शी माइट टेल यू दैट यू डोंट हैव एन एग रिजर्व, एंड आपको हमें जो है एग डोनेशन देना पड़ेगा, डोनर एग लेना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल्सो वी नीड टू evaluate. Is there any process by which quality of women eggs can be improved? Yes, obviously, quality of women eggs can be improved by healthy diet and lifestyle modifications which are required. और आई सपोज कोई डायबिटिक है तो उसको अपना गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल करना ये इम्पोर्टेंट है. प्लस देर इज मेडिसिन ऑल्सो विच इम्प्रूव एग क्वालिटी. एंड बाकी ओवुलेशन के लिए जैसे एएमएच का टेस्ट कराते हैं, वैसे ही एक सेकेंड डे स्कैन भी होता है, सेकेंड डे, डे 2, डे 3, जिसमें हम एंट्रल फॉलिकुलर काउंट करते हैं. सो वी डोंट ओनली रिलाई ऑन एएमएच लेवल कि भाई एएमएच लो है, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लैब के रिजल्ट्स कैन वेरी, और एएमएच अकेला आपको नहीं ये दे सकता कि ओवेरियन रिजर्व कम है. I've seen patients जिनका ovarian reserve बहुत कम होता है, AMH level low होता है, but still they conceive spontaneously. So it does not say कि आप नहीं conceive कर सकते. It only says that your chances of conception gets less with it. Does stress cause infertility? Definitely stress cause infertility, especially the kind of scenario we are in, itna COVID and everything, with the workload around, with both couples working, definitely stress is playing a role in infertility. Especially it's a laptop generation. Usually that's also an important point. We ask our patient's husband कि आप laptop use करते हैं? So if they say yes, the next question is, do you keep it on your lap? Because that is also important, because laptop जो sperms है ना, उनको healthy रहने के लिए they don't need a very warm environment. और अगर लैपटॉप जो है वो हीट हो जाएगा तो वो डेफिनेटली स्पर्म क्वालिटी पे भी इफेक्ट डालना शुरू हो गया है. इट वी हैव सीन इन देयर डाटास. सो दैट इज आल्सो वन थिंग दे नीड टू टेक केयर ऑफ, कि वो अगर यूज करें तो उसको टेबल टॉप पे करें. व्हाट डू यू मीन बाय अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी? So unexplained infertility is which is not explained by any tests. So in a simple words, or otherwise आपने उनका egg reserve देख लिया, आपने ovulation देख लिया, the patient is ovulating normally, her endometrium lining is perfect, her tubes are healthy, sperm quality is fine, then why they are not conceiving? That is known as unexplained infertility. And the difficult part is the treatment of unexplained infertility is IVF. But it's very difficult to convince a patient because they feel हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम क्यों कराएं.
क्योंकि देर आर फ्यू थिंग्स, कोई बायोकेमिकल लेवल पे है, कोई सेलुलर लेवल पे है, देर इज डेफिनेटली सम प्रॉब्लम. So with an IVF, we need to bypass many systems and we get a standardized result for such patients. I think I have covered a lot of things in this. So though infertility is a very vast topic, so it would have been better कि हम next time इसको schedule करके करेंगे, like male infertility or endometrial problems related to infertility, and I'll be able to guide you much better in it. But thank you for the amazing session. Thank you so much.